سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں، 12 MNA اور MPs پاک سرزمین پارٹی میں آنے کو تیار ہیں۔ فاروق ستار نے گرفتار کرانے کی دھمکیاں دے کر روک رکھا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کمال کا بڑا دعویٰ کر دیا۔ رینجرز اہلکار ٹھاکر کا ذکر کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ الطاف حسین کے بیان کے بعد ٹھاکر نے فاروق ستار کو حراست کے دوران ایسا کیا کہا کہ دوسرے دن صورتحال ہی تبدیل تھی۔ جی ہاں، اس کے باوجود فاروق ستار PSP اسٹیبلشمنٹ سے تعلق کا الزام لگاتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ کراچی میں ان کے 12,000 اور حیدرآباد میں 6,000 سے زائد کارکنان ہیں۔ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی کے معروف ڈاکٹر زبیر مرزا اور مبشر امام نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کو کراچی میں 12,000 کے 12,000 لوگ ہمارے پاس اس طرح سے آئے۔ نمبر 1 چلو بھئی کراچی میں تو آپریشن چل رہا ہے، تو حیدرآباد میں ہمارے پاس 6,000 کارکنان ہیں۔ حیدرآباد میں تو سارے MKM کے لوگ کھلے ڈلے گھوم رہے ہیں وہاں پہ، دونوں MKM کے لوگ، تو وہاں تو یہ والا الزام نہیں ہے کہ آپریشن چل رہا ہے، تو وہاں تو پھر اس کا مطلب ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، تو وہاں کیسے آ گئے ہمارے پاس 6,000 کارکنان؟ پھر میرپور خاص میں تقریباً ہمارے پاس 2,200 کے قریب لسٹڈ کارکنان ہیں۔ میرپور خاص میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا، ٹنڈوالا یار میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا، سکھر میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا، تو یہاں پر ہمارے زون کیسے بن گئے؟ کون آ رہے ہیں پھر ہمارا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہزاروں کارکنان کیسے بن گئے؟ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پکڑ کے بھیج رہی ہے ہمارے پاس۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، چترال میں، پشاور میں ہمارے پاس کیسے بن گئے کارکنان سارے؟ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ سے معلومات کے تبادلے کے معاہدے پر 21 مارچ کو دستخط کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کی اہم کامیابی ہے۔ جنوری 2018 سے معلومات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ بیانات آئے، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے 80 سے 200 ارب ڈالرز موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوئٹزرلینڈ نے معاہدے کے لیے شرائط رکھی تھی، مگر حکومت پاکستان نے کوئی شرط قبول نہیں کی، جس کے بعد وہ بغیر شرائط معاہدہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے OECD کے ملٹی لیٹرل کنونشن آن ٹیکس میٹرز کی رکنیت حاصل کر دی ہے، اور رکنیت سے دنیا کے 104 ممالک سے ٹیکس معلومات کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ 7 جون 2016 کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ جی وہ ممالک انکلوڈنگ پاکستان جن کے سسٹم کمپیٹیبل ہیں، جو اس وقت تیار ہیں کہ سپونٹینیس ایکسچینج انفارمیشن شروع کی جائے، اور اس کا انہوں نے جو آپریشنلائزیشن کا فیصلہ کیا ہے کہ اٹ ول بی اسٹارٹنگ فار دی میٹرز انفارمیشن فرام 1 جنوری 2018 to 31 دسمبر 2018۔ یہ پہلا سال ہوگا جس کے متعلق ایئر 2019 میں ایکسچینج آف انفارمیشن ہوگی ریلیٹنگ ٹو 2018۔ سو یہ جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوئس سے مچ بیٹر ہے، کیونکہ سوئس میں آپ نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، آپ نے ان کو کوئی اکاؤنٹ انڈیکیٹ کرنا ہے، کوئی نام انڈیکیٹ کرنا ہے، آٹو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو OECD کی جو ملٹی لیٹرل کنونشن ہے، جو کہ ہم نے 14 سپٹمبر 2016 کو پاکستان کو اس کا ممبرشپ پر سائن کیا الحمدللہ، اور ابھی جب وہ آپریشنلائز ہونے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان میں جو آنے والے سال ہیں ٹیکس ایویڈڈ منی دنیا میں کہیں بھی ان ممالک میں پارک کرنا would be virtually impossible، اور ہمیں انشاءاللہ ایکسچینج آف انفارمیشن کے ذریعے پاکستان will benefit۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن اس ہاؤس کی امانت ہے، سینٹ کی امانت ہے، پارلیمنٹ کی امانت ہے، تو میں نے انفارمیشن ساری جو ہے ہاؤس میں پیش کر دی۔ اب بات کریں گے عمران خان کے متنازع بیان کی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے متعلق عمران خان کے ریمارکس پر سیاست دانوں کی تنقید جاری ہے۔ عابد شیر علی نے عمران خان اور اداکارہ میرا کو پھٹیچر قرار دے دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کا PTI کی وکالت نہ کرنے کا مشورہ۔ مولا بخشانڈیو کہتے ہیں خان صاحب ہر وقت تذکروں میں رہنا چاہتے ہیں۔ دو پلیئرز 2-3 نہیں آنا تھا زیادہ تھا، باقی تو سارے جو پٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے متعلق نازیبا ریمارکس پر عمران خان کو تابڑتوڑ سیاسی باؤنسرز کا سامنا۔ پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر عابد شیر علی تو شعلے اگلنے لگے۔ عمران خان اور اداکارہ میرا کو نہ صرف بہن بھائی بلکہ پھٹیچر بھی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں PTI کی خیبر پختونخوا میں حکومت بھی پھٹیچر ہے۔ پاکستان میں کرکٹ واپس آئی تو اس شخص نے 15 دن پہلے کہا تھا کہ جی فائنل یہاں پہ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا PCB کے ساتھ مل کر کہ فائنل یہاں پہ ہوگا اور فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد اس نے یو ٹرن لیا یو خان نے،
और ये कहने लगा ये पागलपन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो का कहना है कि खान साहब हर वक्त तस्करों में रहना चाहते हैं। वो खुद को नौजवान समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन ने PTI के रहनुमाओं को अहम मशवरा दे दिया। कहते हैं इमरान खान की वकालत की बजाय माजरत करें और बात को खत्म करें। हम समझते हैं कि जो लफ्ज कल से मीडिया की जीनत बना हुआ है, लफ्ज टीचर, मीडिया को भी चाहिए कि इस लफ्ज की पब्लिसिटी से गुरेज करें। कौमी सियासी रहनुमाओं का कहना है अगर एक सियासी जमात के कायद गैर मुल्की मेहमानों के बारे में नाजेबा रिमार्क्स देंगे तो आम कारकुन से शाइस्तगी की तवक्को कैसे रखी जा सकती है। कौम क्रिकेट की बहाली पर खुश है सिवाय एक शख्स के। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने कप्तान पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं फटीचर गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं, इमरान खान है। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत फटीचर है जो हमने उन्हें गैर खैरात में दी है। मजीद इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना ही चाहेंगे कि आप इस बयान पर क्या कहते हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, आपके सामने मैंने दरूद पढ़ा है, तो दरूद पढ़ने के बाद मैं कोई ऐसी बात तो कर नहीं सकता, ना मुझे करनी चाहिए। आबिद शेर अली भाई के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि वो अपनी मिनिस्ट्री संभाले हैं। आज वो इधर मिनिस्ट्री में अपने जवाब दे रहे थे, तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सर्कुलर डेप्थ जो है वो कुछ 600 अरब तक दोबारा पहुंच गया है। मैं समझता हूँ ये बड़ी सीरियस मसाइल हैं वापदा के। आज 3-4 मिनिस्टर MPs खड़े हुए, MNAs खड़े हुए हमारे इधर दीर से। हमारे एक MNA हैं पार्लिमानी DPP हैं तारिक उल्लाह साहब जमात इस्लामी के, उन्होंने कसम उठा के कहा कि हल्के में 13-14 घंटे लोग। जी बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि करप्शन और बदउनवानी का सिक्का राजुल वक्त बना दिया गया। 5 मार्च को स्टेडियम में शानदार क्रिकेट मैच करवाया तो मुखालिफिन के चेहरे पर थप्पड़ लगा। अमीर लोग हैं जिन्होंने मुल्क से कर्जे माफ कराए। एहतसाब के बगैर कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि करप्शन और बदउनवानी को सिक्का राजुल वक्त बना दिया गया है। 5 मार्च को स्टेडियम में शानदार क्रिकेट मैच करवाया तो मुखालिफिन के चेहरे पर थप्पड़ लगा। अमीर लोग हैं जिन्होंने मुल्क से कर्जे माफ कराए। एहतसाब के बगैर कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौरम कौरम कौरम। पंजाब में हुक्मरान जमात के लिए कौरम पूरा करना दर्द सर बन गया, जिसके बायस पंजाब असेंबली का ऐवान चलाना भी मुश्किल हो गया। ऑपोजिशन ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज किया और पंजाब असेंबली के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली और ऑपोजिशन के दरमियान यहाँ पर बहस हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज शुजा की रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ और सिर्फ 5 मिनट बाद ही कोरम की निशानदेही कर दी गई, जिस पर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई 20 मिनट तक रोक दी। दोबारा कोरम की निशानदेही करने पर स्पीकर राना इकबाल ने तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल को शट अप कह दिया, जिस पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। ओपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और गो स्पीकर गो के नारे लगा दिए। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओपोजिशन को हल्ला गुल्ला और नारेबाजी के अलावा कोई काम नहीं। ओपोजिशन कोरम की निशानदेही की गलत रिवायत डाल रही है, किसी मेंबर को आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर जो है वो अपना नुक्ता नज़र बयान करने की बजाय वो उस दौरान भी जो है वो कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत रवायत जो है वो डाली जा रही है। मियां असलम इकबाल के कहना था स्पीकर ने झूठ को सच करने की कोशिश की, बेहतर है असेंबली को ताला लगा दें। पहले भी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, आज भी ऐसा किया। आज स्पीकर साहब ने अपने जो उनका हलफ है, जो उन्होंने हलफ उठाया था, उसकी भी पासदारी नहीं रखी। हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए झूठ को सच साबित करने की उन्होंने कोशिश की है। 3 रोज से अपोजिशन की जानिब से बार बार निशानदेही की जा रही है, लेकिन कैमरामैन आसिफ खान के साथ अयाज शुजा, नियो न्यूज़ लाहौर।
अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में रिमझिम का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई है। मजीद जानते हैं लाहौर से रूबा अरूज से। जी रूबा। जी बिल्कुल, लाहौर में मौसम सरमा ने जाते हुए एक दफ़ा फिर जोर दिखाया है और गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली जो बूंदाबांदी थी उसने जोर पकड़ लिया है और अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है और कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। इसके हवाले से महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो आज ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 24 और कम से कम जो है वो तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। उसके साथ ही साथ ये जो बारिश की स्पेल शुरू हुआ है ये हफ्ते के रोज़ तक जारी रहेगा और जुमेरात और जुमे के दरमियान जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि ये सर्दी का जो खत्म होने की खबरें चलना शुरू हो गई थी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अभी अगला महीना फिर से एक दो स्पेल्स मौजूद हैं बारिश के, लेकिन ये खुश्क सर्दी होगी, इसमें वो जनवरी और फरवरी वाली जो ठंडक थी वो मौजूद नहीं होगी। जी रूबा, जैसा कि आप बता रही हैं कि महकमा मौसमियात का क्या कहना था इस हवाले से तो आपने आगाह किया, बताइएगा लाहौर के जो शहरी हैं वो किस तरह से इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जब बिल्कुल लाहौरिये तो मौका ढूंढ रहे होते हैं मौसम को एंजॉय करने का, और ये जब मौसम खुशगवार और बारिश और हल्की बूंदाबांदी हो तो फिर तफरीही मकामात पर रश बढ़ जाता है और खाबे जो शौकीन से खाने के शौकीन है लाहौरिये वहाँ पर भी रश देखने में आता है। और उसके साथ ही साथ जो है वो तफरीह के लिए डिफरेंट जो है वो तफरीही गाहों का रुख कर लेते हैं शहरी और मौसम को फैमिली के साथ भरपूर एंजॉय करते हैं। जी बहुत शुक्रिया रूबा अरूज। और जैसे कि मौसम के हवाले से रूबा बता रही थी कि जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई है और महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद ये सर्दी आगे स्टे करेगी और मज़ीद बारिशें होने का भी इम्कान है, लेकिन अब जो सर्दी आएगी वो खुश्क सर्दी होगी। नुमान बैठो। खबरदार, होशियार, स्मार्टफोन हैं जासूसी के हथियार। आपके आईफोन, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो से भी जासूसी हो सकती है। स्मार्ट टीवीज और व्हाट्सएप भी महफूज नहीं, मालूमात चुराई जा सकती हैं। CIA ऐसा कर भी चुकी है। CIA ने 1000 से ज्यादा कंप्यूटर वायरस और दीगर प्रोग्राम तैयार किए। हैकिंग करके आपके सेलफोन्स, टेलीविजन और यहाँ तक के आपकी कार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। विकीलीक्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भांडा फोड़ दिया। हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले खुफिया हथियारों की तफसीलात जारी कर दी। विकीलीक्स ने CIA के खुफिया हैकिंग हथियारों का इंकशाफ कर दिया। खुफिया हैकिंग प्रोग्राम की 8000 से ज्यादा खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी। दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया न सिर्फ आईफोन, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन से जासूसी हो सकती है, बल्कि आपका स्मार्ट टीवी खुफिया एजेंसीज को आपकी सारी गुफ्तगू भी सुनवा सकता है। जासूसी के लिए CIA ने 1000 से ज्यादा कंप्यूटर वायरस और प्रोग्राम तैयार किए जो आपके सेल फोन, टेलीविजन और यहाँ तक आपकी कार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। CIA टेक्नोलॉजी की मदद से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और दीगर मैसेजिंग सर्विसेज तक बआसानी रसाई हासिल करती है और आपका तमाम डाटा हासिल करती है। विकीलीक्स के मुताबिक स्मार्टफोन बिलखुसूस ज्यादा गैर महफूज हैं क्योंकि दीगर बरकी आलात एक जगह तक महदूद रहते हैं। ताहम स्मार्ट न सिर्फ हर वक्त ऑन रहता है बल्कि आपके साथ भी रहता है। CIA के तर्जुमान ने इंकशाफात की तस्दीक से इनकार करते हुए मुबैना इंटेलिजेंस दस्तावेजात की सदाकत या उसके मवाद पर बयान देने से गुरेज किया है। बरतानवी दफ्तर दाखिला ने भी दस्तावेजात पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर ने कहा है कि मोबाइल और स्मार्ट टीवी बंद भी हो तो जासूसी की जा सकती है। ताहम ये बात आम लोगों के लिए परेशानी की बात नहीं, बल्कि CIA को फिक्र होनी चाहिए कि उनकी खुफिया कोडिंग अब पब्लिक हो गई है। न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सरबराह ने कहा कि मार्केट में नया सॉफ्टवेयर तब तक नहीं आता जब तक एजेंसीज इसका तोड़ हासिल न कर लें, क्योंकि एजेंसीज के कांधों पर मुल्की सालमियत की जिम्मेदारी होती है। नई बात नहीं है बिल्कुल भी। ये FBI, ये हमारे इवन जो ISI और अपनी एजेंसीज हैं उनके पास भी ऐसे टूल्स होते हैं कि ये किसी के मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को जब बंद भी होता है तब भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर ने कहा कि मोबाइल या लैपटॉप में बैटरी मौजूद रहे तो मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जबकि स्मार्ट टीवी अगर बंद भी हो तो केबल की तार में मौजूद करंट से टीवी या उसके कैमरे तक रसाई मुमकिन है। बैटरी अगर आपकी डिवाइस के अंदर है तो लोकली या कोई ऐसा स्मार्ट प्रोग्रामर नहीं हो सकता कि जो उसका एंटीडोट उसको रोक सके
کہ جو بڑی ایجنسیز کے پاس جو سافٹ ویئر ہے اس کو نہیں روک سکتے آپ. प्रिंसिपल पंजाब यूनिवर्सिटी शोभा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि चंद डिवाइसेस की बैटरी निकाल भी दी जाए तो उनमें मौजूद खुफिया बैटरी के जरिए एजेंसीज मालूमात हासिल कर सकती हैं. ऐसे कौन से तरीक़े कार हैं जिन पर अमल करके आप अपने सेल फोन्स और कंप्यूटर्स को हैकिंग से महफूज बना सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में. जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन डाटा बचाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन कुछ तदाबीर को अपना कर बचा जा सकता है. अपने आईफोन्स, विंडो फोन्स और हर तरह के स्मार्टफोन्स को हैकिंग से महफूज रखने के लिए एंटी स्पाइंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए. अपने मोबाइल की सेटिंग और किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अगर मैनुअल सेटिंग्स को सेलेक्ट कर लिया जाए तो हैकिंग से बचा जा सकता है. सेल फोन्स में किसी भी किस्म की ऐप इंस्टॉल करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और किसी भी मशकूक लिंक पर जाने से गुरेज करें. लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जैसे वायरस के जरिए जासूसी का खतरा मौजूद होता है. इससे बचाव के लिए अपनी विंडोज को न सिर्फ अप टू डेट रखना जरूरी है बल्कि एक अच्छे और मायारी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी आपको हैकिंग से बचा सकता है. वेब कैमरे के जरिए जासूसी को रोकने के लिए कैमरे पर काली टेप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हैकर्स कैमरे के जरिए आपकी सरगर्मियों पर नजर न रख सकें. स्मार्ट मोबाइल फोन का डाटा महफूज नहीं, शहरियों ने भी तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए. कहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर सारिफीन की जासूसी बंद की जाए और डाटा को गैर महफूज होने से बचाया जाए. मजीद क्या कहना है सारिफीन का, आप भी देखिए. जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है उसका जो हम डाटा इस्तेमाल, हमारा जो डाटा हमारे फ़ोन में सेव होता है वो अननोन पर्सन इजीली हमारा निकाल के मिसयूज़ कर सकता है. तो हमारी जो पॉलिसी है उनको चाहिए कि वो ऐसा रूल बनाए कि अगर जब हमारा डाटा अगर देख भी रहे हैं तो वो इस डाटा को मिसयूज़ मत करें. पीटीए को चाहिए कोई ऐसी सर्विस बनाए जिससे उनका डाटा अगर लिया भी जा रहा है तो वो सेफ रहे. मेरे ख्याल से ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर हमारी जो पीटीए को एक्शन लेना चाहिए. हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारा डाटा है वो सेफ नहीं है, पिक्चर्स वगैरह, तो पीटीए को चाहिए कि इससे कुछ ऐसा सर्कुलेट करे कि ये सही हो जाए. सर इन्फॉर्मेशन का ब्रीच जो है और स्पेशली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है. इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं, किसी को भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए. एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल आजकल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है. देखिए अब हम अपने फ़ोन में सारा अपना डाटा सेव रख रहे हैं. जब हमारा अपना डाटा ही सेव नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं रख सकते कि हम लोग अपने मोबाइल में कोई चीज़ सेव कर सकते हैं या नहीं. इसलिए पीटीए इज़ डूइंग सो वेल कि हम इसको कोई ना कोई ऐसी ऐप मुतारिफ करानी चाहिए एंड इट्स गुड. और आपको बताएं कि कराची में महकमा इंसदाद तजावुजात का डेंसो हॉल, खारादर और मीठा दर के अतराफ मार्केट्स में क्रैकडाउन जारी है. इस हवाले से बताएं कि तजावुजात गिराने के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है. मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल से. कामरान बताएगा सूरत हाल क्या है? देखिए इंसदाद महकमा तजावुजात की जानिब से जो है वो शहर में जो है वो इंक्रोचमेंट की सफाई का सिलसिला जो है वो ताहल जारी है और आज जो है उस मुहिम में तेजी भी आई है. तो सदर के कुछ इलाके हैं जिसमें डेंसो हॉल है, खारादर, मीठा दर, यहाँ पर जो है वो जो पटारे लगे हुए थे उसको जो है वो महकमा तजावुजात की टीम ने जो है वो हटाना शुरू कर दिया है. और इस दौरान जो है वो किसी भी मुमकिना वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तलब की गई है. पुलिस के साथ मिलकर जो है वो महकमे के जो एहलकार हैं वो इस वक्त तजावुजात भी साफ कर रहे हैं. जितने भी पतारे हैं तकरीबन लगभग दर्जन भर से ज़ायद जो है वो पतारे इस मार्केट के अंदर लगाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो आज ये फिर सिलसिला शुरू किया गया है. कामरान, गुज़श्ता रोज रेलवे की भी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया था, वहां से भी तजावुजात का खात्मा किया जा रहा था, तो क्या वो भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है? देखें इस वक्त जो है वो कराची में जो तजावुजात के खिलाफ मुहिम है बिलखुसूस सर्कुलर रेलवे जो अब शुरू किया जा रहा है, तो इस तरफ जितनी भी जो आबादियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है वज़ीर आला हुसैन ने अहकामात भी जारी किए गए थे. तो वो जो मुहिम जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है. लेकिन जो शहर के अंदर जो ट्रैफिक जाम की जो सूरत हाल होती है वो इन्हीं तजावुजात की वजह से होती है. सड़कें तो चौड़ी होती है, कुशादा होती है, लेकिन उस पर पठारे लगा दिए जाते हैं और बिल्कुल एक मुख्तसर सी सड़क रह जाती है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात परेशानी का सामना करना पड़ता है. ओवरऑल कराची में ये ऑपरेशन किया जा रहा है. कामरान सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका. खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए.
یہ कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है तेरी महफिल में। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन अरकान असम्बली से बोलने का हक छीन लिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन भी ख़वातीन से मिल गई और इजलास से वॉक आउट कर दिया। शीरी मजारी ने शिकवा किया कि अपोजिशन के मर्द तक उनके वॉक आउट में शामिल हो गए, लेकिन नून लीगी ख़वातीन ने कभी भी साथ नहीं दिया, यानी कि उन्होंने नून लीगी ख़वातीन से आज के दिन के मौके पर खुसूसी शिकवा कर दिया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ही ख़वातीन बोलने के हक से महरूम। कौमी असम्बली के ऐवान ने हक तलफी की नई मिसाल कायम कर दी। ख़वातीन अरकान ने इस दिन की मुनासबत से बोलने की इजाज़त मांगी तो इन्हें ना दी गई, जबकि कोरम की कमी के बाइस ख़वातीन अरकान अपनी करारदाद भी पेश ना कर सकी। ख़वातीन को बोलने की इजाज़त ना मिली तो उन्होंने इजलास से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन भी इनके साथ शामिल हो गई। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो ज़हनियत है इस हुकूमत की, ये एक औरतों के खिलाफ है। औरतों के हकूक को ये नहीं आगे बढ़ाएंगे, ना बढ़ा सकते हैं। जब पार्लियामेंट में वो हकूक नहीं दे सकते औरतों को और इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो बाहर कौम की औरतों के साथ क्या वो करेंगे। ख़वातीन अरकान का कहना था कि इनकी करारदाद आलमी दिन के हवाले से थी, लेकिन मुतल्लिका वजीर तक ऐवान में हाजिर नहीं हुए थे। ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून तो बना दिए गए हैं, मगर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये कहना था क्वेटा में ख़वातीन का, जिन्होंने अपने आलमी दिन के हवाले से रैली निकाली और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से बुशरा कमर। अपने हकूक और माशरे में नाइंसाफियों के खिलाफ नारे लगाने वाली ये खवातीन एक रैली में शरीक हुईं। कोयटा में ये रैली खवातीन के आलमी दिन के हवाले से निकाली गई, जिसमें घरों में काम करने वाली खवातीन समेत समाजी कारकुन और मुख्तलिफ निजी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। रैली में शरीक शहीद बेनजीर भुट्टो वुमेन सेंटर की मैनेजर रुबीना जहरी ने बलूचिस्तान में खवातीन को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। खवातीन को ये भी नहीं पता है कि उनके हवाले से जो कवानीन पास हुए हैं उनको वो किस तरह से उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। रैली में शरीक एक समाजी कारकुन फरखंदा असलम का कहना था कि बलूचिस्तान में खवातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से कानून तो बना दिया गया, मगर बदकिस्मती से इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रुबीना जहरी ने बताया कि रवां साल खवातीन पर तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात के 100 से ज़ायद केस रजिस्टर्ड हुए हैं। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। मर्दों के हुकूक का दिन मनाने का भी मुतालबा सामने आ गया। खवातीन के आलमी दिन पर कैनेडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की बेगम ने मर्दों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अहलिया का कहना है कि खवातीन की तरह मर्दों का दिन भी मनाना चाहिए। कनाडा की खातून अव्वल सूफी ट्रूडो ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर लिखा है कि जो मर्द खवातीन का एहतराम करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी आलमी दिन मनाया जाना चाहिए। अपने शौहर के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए सूफी ने तमाम खवातीन को मशवरा दिया कि वो भी अपने साथी के साथ तस्वीर शाया करके यकसा हुकूक की तहरीक को फरोग दें। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि मुआशरे के तमाम तबकात को खवातीन के हुकूक के लिए सामने आना होगा और 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक हमारी पहचान गैरत के नाम पर कातिलों की बजाय खवातीन के हुकूक के मुहाफिजों की होनी चाहिए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज अली। One child, one teacher, one book and one pen can change the world. सवाद से ताल्लुक़ रखने वाली नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अपना पैगाम जारी किया है, जिसमें ख़वातीन को ताकीद की गई है कि माशरती रुकावटों को दूर करने के लिए खुद उन्हें सामने आना होगा। हमारे माशरे की पहचान अब गैरत के नाम पर कातलों की नहीं, खवातीन के हुकूक के मुहाफिजों की हैसियत से होनी चाहिए और इसके लिए सबको सामने आना होगा। मलाला यूसुफजई का कहना है कि खवातीन की तरक्की की राह में गुर्बत, नाइंसाफ़ी, कम उम्री में शादी और तालीमी सहूलियात का न होना सबसे बड़ी रुकावटें हैं।
नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने दहशतगर्दी से मुतासरा सवात में मुतासरा बच्चों की हुकूक के लिए आवाज़ उठाई थी, जिसकी पादाश में 2012 में दहशतगर्दों ने उसे निशाना बनाया था। ताहम अल्लाह ताला ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी। लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। लाहौर में खवातीन के आलमी दिन पर तालिबात की जानिब से साइकिल रैली निकाली गई। रैली में तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली में शरीक तालिबात के क्या जज्बात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा रूबा अरूज से। जी रूबा, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और हर कोई मुनफरिद अंदाज में इसको सेलिब्रेट कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी कॉलेज में, जहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए साइकिल रैली निकाली जा रही है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज वुमेन डे सेलिब्रेट कर रही हैं। उनकी क्या अज़ाइम है, कितना जोशो जज्बा है, क्या मुआशरे को पैगाम देना चाहती हैं, ये जानेंगे हम। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमारे मुआशरे में जो औरतों को जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्कुल ना दबाया जाए। हम सब कुछ कर सकती हैं और हम हर शोबे में अपने आगे अपना नाम पैदा करेंगे। जी बिल्कुल, हर शोबे में नाम पैदा करने के आज़म का इजहार किया। कुछ और ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप वुमेन डे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपका क्या पैगाम है, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, खासतौर पर लड़कों से। जी बिल्कुल, ख़वातीन का आलमी दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा। और अब ये राइड स्टार्ट हो गई है। अगर कैमरा साथ साथ दिखा सके तो मकसद इस राइड का ये है कि ख़वातीन को एम्पावर करना और साथ ही साथ ये पैगाम देना कि ख़वातीन अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उन्हें माशरे का ताकतवर शहरी बनने से रोक सके। एक तरफ साइकिल रेस तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर ज़राई यूनिवर्सिटी में खुसूसी वॉक का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर की इस रिपोर्ट में। 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन, खसूसी वाक और साइकिलिंग रेस। ये मनाजिर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जहाँ सनफे नाजुक को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए उनके आलमी दिन को भरपूर अंदाज में मनाया गया। आज वुमेन डे और हमारी यूनिवर्सिटी में हर वुमेन्स डे पे जो है वो रैली भी निकलती है साइकिलिंग की और गर्ल्स जो है वो पूरे जोश में आके बताती हैं कि वुमेन राइट्स और सारा कि गर्ल्स किसी से कम नहीं होती हैं। खसूसी वाक की क़यादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने की। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया देहाती खवातीन के लिए भी तालीम के शोबे में हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। ज़राई यूनिवर्सिटी जो है ये फोकस्ड है देहाती तरक्की के ऊपर और हमारा वाहिद अदारा है मुल्क में जो बच्चों का एडमिशन ही देहाती डोमिसाइल पे करता है। तालिबात ने साइकिलिंग रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया कि मर्दों के मुआशरे में खवातीन भी किसी से कम नहीं। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर मुनक्कद की जाने वाली इस वाक का मकसद खवातीन की एम्पावरमेंट को शो करना था। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जवेरिया नज़ीर, न्यूज़, फैसलाबाद। दुनिया भर की तरह मुल्तान में खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन की अहमियत को मुआशरे में उजागर करने के लिए खुसूसी तकारीब का भी इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुल्तान से शिजा जबी की रिपोर्ट में। ते पुत्राले जागीर। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी खवातीन का आलमी दिन बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ज़िले इंतजामिया की जानिब से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। The woman is independent. She has a right. She can raise her voice. She is no more dependent under the patriarchal society. तकरीब में आई तालिबात ने वुमेन डे के हवाले से तकारीर, नगमे और टैबलोज पेश किए, जिसे हाजिरीन ने खूब सराहा। जो औरतें घरों में बैठी हैं, कुछ पढ़ नहीं रही, मतलब उनके माँ बाप कुछ पढ़ा नहीं रहे, तो प्लीज वो कुछ पढ़ें, कुछ आगे बढ़ें ताकि वो अपने हकूक हासिल कर सकें। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर तकारीब का मकसद खवातीन की अहमियत को माशरे में उजागर करना है। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी में सोजे दरूं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ शिजा जबी, नियो न्यूज़, मुल्तान। इसके साथ ही यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। फिरोजाबाद पुलिस ने लूट मार की नीयत से इलाके में घूमने वाले मुलजिमान को धर लिया। असला भी बरामद कर लिया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस नियो न्यूज़ ने
हासिल कर ली। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। फिरोजाबाद पुलिस ने लूटमार की नीयत से इलाके में घूमने वाले मुलजिमान को धर लिया, असलहा भी बरामद कर लिया, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। सवाबी में दहशतगर्दों के खिलाफ दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुकामी नहीं लगते। गुज़श्ता रोज भी फोर्सेस से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए थे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। और अब बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का ट्रायल रोकने का हुक्म देते हुए करार दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की मुंतकिली से मुतालिक वाज़ेह हुक्म जारी करे, जबकि बेहतर होगा कि बच्ची को SOS विलेज भिजवाया जाए। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या रियासत मुतमईन है कि बच्ची के साथ इंसाफ हुआ, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने तहकीकाती टीम बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस गुस्ताखी को ना रोका गया तो मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा। सिंध के सरकारी तालीमी इदारों के खिलाफ पीस काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से नवाब सुमरो नामी समाजी रहनुमा खुद को जाल में बंद करके अनोखा एहतजाज करते रहे। उनका कहना था कि सिंध में 2000 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हैं, हुकूमत सरकारी स्कूल को फाल बनाए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर। सिंध में बंद स्कूलों को खुलवाने के लिए यहाँ पर एक अनोखा एहतजाज किया जा रहा है। पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवाब सुमरो जो है वो अपने आप को जाले में बंद कर एहतजाज कर रहे हैं और इनके साथ जो है वो बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, आपके एहतजाज का मकसद क्या है? मेरे एहतजाज का मकसद है कि सूबा सिंध के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो खोले जाएँ और तालीम को आम किया जाए। मैं इंटरफेथ हारमोनी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान में रहने वाली हर कौम के बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। हमारे प्यारे पाकिस्तान को आज़ाद किए हुए तकरीबन 65 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारे हुक्मरानों ने नहीं अच्छी सेहत नहीं अच्छी तालीम दे सके हमारे मुल्क को। हमारा मेन मकसद ये है कि तालीम को आम करो और जाहिल फैक्टर बंद करो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। आने वाली ये नस्लें हमारे आने वाले अच्छे डॉक्टर, अच्छे अदीब और अच्छे इंजीनियर बनना देखना चाहते हैं हम। ये इनका कहना था कि ये जो है वो सिंध में जो सरकारी स्कूल बंद हैं उनको खुलवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि जो है आने वाली नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। जी ठीक है, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी के बाद मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलने लगे। हुकूमत ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को दौरे पाकिस्तान के लिए बाज़ाब्ता दावत दे दी है। वजीर खेल जिम्बाब्वे कहते हैं कि टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए बोर्ड से बात की है। अभी आपको बताएं कि हेड कोच मिकी आर्थर की ज़ेरे निगरानी इमर्जिंग क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो गया है। चेयरमैन PCB शहरयार खान ने कैंप का मकसद नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेना होगा। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम बदेस की रिपोर्ट में। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जारी 3 रोज़ा तरबियती कैंप में मुल्क भर से 40 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया। ग्रेड 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शरीक 6 खिलाड़ी कैंप के पहले रोज शिरकत नहीं कर सके। कैंप का मुआयना करने आए चेयरमैन PCB शहरयार खान का कहना है हेड कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तान में पहली असाइनमेंट के तौर पर नौजवान क्रिकेटर्स का टेस्ट देखना था। नौजवान बच्चों को देख के बड़ी खुशी हुई और इंतज़ाम मिकी आर्थर और जो सिलेक्टर्स थे उनसे बातचीत हुई। ये सब देख रहे हैं कि मिकी आर्थर इन बच्चों को देखें। कज़ाफी स्टेडियम में जारी कैंप की निगरानी के लिए मिकी आर्थर समेत कौमी क्रिकेट टीम का मुकम्मल कोचिंग स्टाफ और इंज़मामुल हक की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी भी मौजूद है। कैमरामैन वाजिद के साथ इब्राहिम बादेस, नियो TV लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो न्यूज़ के साथ रहिए।